chapter in our syllabus is on the basis of actually current trends and the case basis completely. This is the current trend is going on that after the 90s, when the 2020 come, and the fold of this 10 year, now we are turning to next 10, correct? So 2000 to 2010, 2010 to 2020, this 20-year period, Indian government have seen a lot of grown of startups, and you can see as a result there are the many special courses are coming where the startups are going to be boosted up, correct? तो in this particular chapter basically हम ये देखने वाले हैं कि स्टार्टअप कैसे शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीजंस है, बेसिक अभी फिलहाल क्या स्टेटस है हमारे इंडिया का, और स्टार्टअप्स क्यों होने चाहिए। क्योंकि ये जो पूरा हमने अभी तक जो पढ़ा है, माइक्रो फाइनेंस, एसएचजी, फिर रिटेल बैंकिंग, ये पूरा बैकग्राउंड है एक्चुअली टू बूस्ट इकोनॉमी। लास्ट टाइम हमने बात किया था कि मनी शुड बी गेट सर्कुलेटेड, द फाइनेंशियल इंक्लूजन शुड बी देयर, करेक्ट? बट एट द एंड ऑफ द all steps taken by the private player, semi-government, completely NGO, means non-profit organizations, or 100% government initiative. These all initiatives are centralized somewhere is what? How to create bread and butters to more and more people. This is the first. Secondly, how to provide finance to the people, okay? Because when they are as a human, means as a family person, or they are a businessman person, or he may be a farmer person, still दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंस, करेक्ट? उनको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत है, तो उन पैसे की ज़रूरत के कंप्लीट करने के लिए फाइनेंसिंग भी ज़रूरत है, करेक्ट? तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इन सब के साथ जब हम बात करते हैं तो आता है हमारा स्टार्टअप्स भी एक है, कि जो उसी का ही एक भाग है, जो माइक्रो फाइनेंस के लिए भी स्टार्टअप्स जो है उनको फार्मिंग बेस पे होंगे तो वहाँ पे वो जा सकते हैं, ओके? So there are the many different ways to get the finance and to build startups, okay? So today we are going to see what is startup basically बिल्कुल start से we are going to start कि startup क्या है basically, okay? You can see here the focus is on more on startups in India because we all are from India, so we need to understand what is the status of our startup. That's why I have kept both. And surprisingly you will find that there are some states they are having more startups. Basically I will try to share more and more cases which I have read, which I have studied, okay? So here is the first what we are going to discuss in this whole chapter. This chapter is very big chapter. I will try to cover each and everything in detail. The first, as it is mentioned, startups in India, the funding raising norms for startups. Then SEBI regulations for startups listing, because now SEBI has given permission to list, means to list your company on the stock market, okay? So that is there. Then angel funding, origin of angel funding, it is again one of the biggest concept of funding. So that slide more today we'll discuss, then we'll go in detail afterward. Then financial technology, what is the financial technology is happening, that some part of it I already discussed in my retail banking part as a fintech, that how the fintech is growing in India. It is a vast, and it is increasing like anything. Because of this pandemic you will find the fintech is growing like anything than any other business, okay? So that part we are going to discuss here, that what are the different startups are there, how they started, how this fintech companies came in exist, and what are the rules are there that they have to follow, okay? And what opportunities they have found, and because of that fintech industry is growing in India, that we are going to discuss.
Then prepaid payment mechanism in India, like how the prepaid concept is working right now, and for that purpose how the fintech is supporting, how the retail banks are supporting these all things. Even the Paytms, how means the payment banks, not Paytms, Paytm is a particular company name, but the payment bank mechanism, how they work. Then even whatever the websites you are opening, they all are providing you wallets, correct? How the wallets are working and what is the role of that wallet, that we are going to see here. Then related to this particular wallet, RBI have some guidelines. As someone said, I have heard that word, actually I forgot the story. He said that actually in India there is always, yeah, when I was listening one webinar, one particular FDP, that webinar, there was one person who was discussing about cryptocurrency. He said that every means in every country, in our India also it happens, the first concept comes, we start implementing and using, then the rules comes. Okay, same happen here in our India also. We all started using e-wallet, government has given permissions, people started identifying the opportunities, and then government found, and there is a possibility that in this wallet also the people may do the frauds, correct? The people may make a fool, because people are keeping money with the trust in that particular wallets, correct? They are prepaid, they are doing a prepayment of a particular services. So there must be some rules and regulations. Okay, so RBI came in existence with the rules and regulations. Okay, same as there for the crypto, but for the crypto right now we don't have any regulating authority, but cryptocurrency is also there, which is working rigorously behind the curtain for making the money. Then second part of it, which is completely related to all about topics, expanding role of automation and digitalization. As we all are using technology now, you can see I'm sitting at my home, you're sitting at your home. Because of this pandemic, we all started using a digital platform, digitalization, and nowadays everything becomes an automations. Like you can see, whatever the lecture I'm delivering, it is going to be recorded, and if someone miss, he or she can again listen and clear the doubts, correct? So this particular technology, this kind of technology, how this technology is going to be a very important part for decision making process when we are talking about any startup or any banking or any microfinance. That part we are going to discuss here, that how this digital decision making models are there, and how this particular models help for giving more and more operating good conditions for the people. Okay, and the last part, which is now very growing and very vast, it is a data analytics part of finance part. For that myself I am learning now Python. I have done R. Now I am learning Python. Through the Python I can do the data analytics. So I am also doing, I will suggest you also do that, because down the line of 10 years nobody is going to use the particular old software whatever we are using. There will be automatically, the finance data is going to be automatically analyzed by the people to give the predictions, to give the forecast, to give and analyze the data, what is happening exactly. Okay, and this finance analysis, this data analytics has a huge scope, because this finance analytics, this forecast gives an forecast to you about money. Okay, एंड मनी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, करेक्ट? पैसा जो है एक इकोनॉमी की एक पार्ट है, और इकोनॉमी के पैसे के साथ जो भी होगा उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा, करेक्ट? तो यही एक वजह है जिसकी वजह से फाइनेंस डाटा एनालिटिक्स पार्ट बहुत बड़ा आगे आने वाला है, वो आ रहा है और धीरे धीरे you can see government is launching very big schemes and all, correct? तो these all are actually data driven. उन्होंने already identify किया है कि क्या होगा आगे, correct? Down the line of back 10 year, if you go and if you see the all the politician, not politicians specifically, but जो बड़े लोग सोचने वाले थे, जो इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बोला था कि
आने वाली 21वीं सदी में भारत जो होगा वो सबसे यंगेस्ट कंट्री होगा, करेक्ट। एंड उसमें सबसे ज़्यादा यंग ब्रेन्स होंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में वी ऑल इंडियंस हैव अ स्पेशल टैलेंट बेसिकली। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सम पीपल आर यूजिंग देयर टैलेंट हियर इन आवर कंट्री, सम पीपल आर यूजिंग दैट टैलेंट इज आउटसाइड द कंट्री, बट इट इज ऑलरेडी प्रूवन कि हमारे लोगों के अंदर, इंडियन लोगों के साथ कुछ है। तो यही चीज को डेटा को एनालाइज करते हुए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जिसके हिसाब से वो सब दे आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनेंस, ये जो इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स की इंडस्ट्रीज है, वो ग्रो होगी। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो दिया है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स क्या कंसेप्ट है, उसके वो डेटा कहाँ से आता है, डेटा कैसे एनालाइज होता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या डेटा ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है, और क्या स्कीम्स लॉन्च की है, ये 4-5 चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन करंट थिंग्स, ओके। Here you need to be always touch with the न्यूज़पेपर, ओके। बेसिकली ये बहुत बड़ा सोर्स है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़िए। आई विल सजेस्ट यू ऑल फाइनेंस स्टूडेंट्स, प्लीज डू रीड ईटी। ईटी नहीं पढ़ना होता है, एटलीस्ट सीएनबीसी सुनिए सुबह के 7 बजे जो बताते हैं। देन वहाँ पे एक स्पेशल एक टॉक आता है जिसके अंदर दे टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द फंडिंग वेंचरिंग्स एंड ऑल। तो वो जो पर्टिकुलर टॉक है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, किसको वेंचरिंग कौन कर रहा है, ओके। देयर आर द मेनी वेंचरिस्ट इन इंडिया, इवन आउटसाइड ऑफ India, means in world there are the many people. So that part we are going to discuss. So here now what I'm going to discuss today, what is startup basically, that part we will discuss. Why startups, क्यों startup होनी चाहिए, how they get funding, उनको funding कहाँ से मिलता है, और इसके अंदर सेबी का रोल कैसे आया और क्यों आया, जबकि ये तो पहले नहीं था बट अभी आ गया है। तो क्या है रोल, क्यों है, वो हम चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्लाइड पे मैंने एक छोटा सा आपके एक फोटोग्राफ रखा है, यू कैन सी। जितने भी सिंबल है इसमें से कई सारे सिंबल आपके पहचान के होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट तो सभी जानते हैं, करेक्ट। बट आप अगर छोटे 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 1 बिलियन 1.1 बिलियन में देखोगे तो आपको दिखेगा एक बिग बास्केट है, लेंस का .com है, करेक्ट। आपका ये है स्विगी है, करेक्ट। तो दीज ऑल आर नथिंग बट वर्ड जीरोधा, एक नया ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कर सकते हो। पॉलिसी बाजार है, जोमेटो है, करेक्ट। तो ये सारे स्टार्टअप है बेसिकली, करेक्ट। हम सोचते वक्त सिर्फ कंपनीज के बारे में सोचते हैं, बट ये जब स्टार्ट हुए थे, ये एक आइडिया थी, जिन्होंने आइडिया को इनक्यूब किया, उसको फुलाया, उसके लिए ग्रो करवाया, करेक्ट। तो वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज स्टार्टअप बेसिकली। स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बीइंग, डिजिटल वर्ल्ड और आपका इनोवेटिव थिंकिंग, इन तीनों को साथ में मिलाती है, ओके। एंड द पर्सन जो ये करता है वो जो ह्यूमन बीइंग करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि उसे कुछ नया जो कहीं किसी ने नहीं किया वो करने की चाह हो और वो आइडिया हो, तभी वो स्टार्टअप बनता है, ओके। डिजिटल प्लेटफॉर्म तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सभी लोग जानते हैं, बट देयर आर द वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली जो इस चीज को बहुत क्रिटिकली देखते हैं। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में रेड बस का एग्जाम्पल दिया था, करेक्ट। इवन पेटीएम का एग्जाम्पल दिया था, करेक्ट। इन कमिंग सेशन आई विल गिव द बाम्बू इंडिया एग्जाम्पल ऑल्सो, बिकॉज आई हैव इंटरटेन हिम इन माई वन ऑफ द सेशन, एंड मेरे आने वाले वेबिनार में भी है वो। तो आप देखोगे कि सिंपल ह्यूमन बीइंग जिनका सभी जानते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, सभी को पता है, बट उस चीज में एक इनोवेशन देखना, ये इटसेल्फ इज बिग डील, तभी कहीं स्टार्टअप होता है। अभी कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास इनोवेशन होता है, ह्यूमन ब्रेन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, बट इसमें क्या होता है ना कि व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे नीड टू हैव सम बिजनेस मॉडल। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को इनोवेटिव आइडिया होता है, इच्छा भी होती है सब कुछ करने की, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पता होता है, बट दे डोंट हैव अ बिजनेस मॉडल कि बिजनेस मॉडल कैसा डेवलप किया जाए कि ताकि
इससे वो आगे ग्रो हो, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत आते हैं, सॉरी टू से, जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं ना उसमें करीब करीब 94% ऑफ स्टार्टअप्स क्लोज हो जाते हैं एक साल में। मीन्स 100 खुलते हैं ना एक साल में, तो उसमें से 94, 94 स्टार्टअप जो होते हुए वो एक साल बाद बंद हो जाते हैं। दिस इज द सीन। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मॉडल बहुत जरूरी है कि आपने नया सोचा, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला, आपको फंडिंग में मिल गया, बट वो बिजनेस मॉडल होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस मॉडल टॉक्स अबाउट फंडिंग कहाँ से आएगा, ग्रोइंग स्टेजेस क्या रहेगी, कैसे कैसे वो एक्सपांड करेगा, ये सोच, ये मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। ओके, क्रिएटिविटी है, ये है, वो है, ये सब कुछ ठीक है, बट बिजनेस मॉडल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आपके पास बिजनेस मॉडल आ जाता है, स्केल वैल्यू में डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे यूज किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन, और क्रिएटिंग अ वैल्यू टू द सोसाइटी एंड टू माई सेल्फ ऑल्सो। ओके, क्योंकि मैं किसी को देने के लिए, जब भी कोई स्टार्टअप खुलता है ना, वो किसी प्रॉब्लम से तैयार होता है एक्चुअली। कुछ तो प्रॉब्लम फाउंड हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट ही और शी थॉट ऑफ व्हाई नॉट दिस। ओके, तो वो जो क्रिएटिव वैल्यू है वो उसकी वजह से होता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कैप्चर वैल्यू, कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन जब साथ में चलते हैं तब बनता है स्टार्टअप। स्टार्टअप स्टार्ट होता है यहाँ पे, स्टार्टिंग इट इज कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग ऑफ गेटिंग एन इनक्यूब, जहाँ पे आप जैसे किसी बीज को जमीन के अंदर डालने के बाद उसको कवर कर दे, उसको धीरे धीरे छोटा रूट आता है, करेक्ट, देन रूट के बाद छोटे से पत्ती आती है। दैट स्टेज इज नथिंग बट व्हाट दिस स्टेज ऑफ इनोवेशन, डिजिटल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। अभी तक सिर्फ जस्ट ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो दिस इज अ स्टार्टअप, दैट माइंड सेट इज रिक्वायर्ड। ये कंप्लीटली फिलोसॉफिकल है, बिकॉज ये साइकोलॉजी और फिलोसॉफी दोनों से बना हुआ मॉडल है। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक रिसर्च पेपर पढ़ के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप नहीं खोल सकता। हमें लगता है हम स्टार्टअप खोल रहे हैं, बट उस स्टार्टअप के लिए आपकी वैसी क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकली उतनी ताकत होना भी जरूरी है। क्योंकि समटाइम्स आई हैव read the specifically some articles on it, कि जब what is the reason behind failure of startups, तो startups failure होने का रीजन कहीं ना कहीं जो है ज्यादा करके यहीं पे है, बिजनेस मॉडल का जो स्टडी है या फिर बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, वहां पे कहीं तो वो कम पड़ जाते हैं, यहाँ पे वहां पे कहीं उनको सपोर्टर नहीं मिलता है। ओके, तो that is the reason basically. We have a many brains who are working. Okay, so now when we are thinking about this particular, so here are some key characteristics when you are starting a startup basically. You have to be very focused on growth, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले बोला बिजनेस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप जब कोई इनोवेटिव करना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी फोकस, कि मैं इस चीज को कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे कैसे धीरे ये बढ़ेगा, इससे कैसे कैसे सोसाइटी को फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। ओके, एंड ऑलवेज थिंक एक्स्ट्रा माइल। ओके, मोर देन वन पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर हैविंग एन आइडिया, तो योर आइडिया इज देयर डेफिनेटली, बट limitations comes, as I mentioned you, psychologically एंड फिलोसॉफी, दोनों चीजें हैं। क्योंकि आपकी फिलोसॉफी क्या है, अभी तक का जो भी फिलोसॉफी जो होती है वो हमारे दिए गए संस्कार पे डिपेंड होती है, करेक्ट, एंड साइकोलॉजी हर इंसान की अलग अलग होती है। ओके, क्योंकि फिलोसॉफी आपको आपके रहने वाले एनवायरमेंट से डेवलप होती है। साइकोलॉजी आप जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया है, उस व्यवहार से आपकी साइकोलॉजी बनती है। तो दोनों चीजों का मिक्स बन के हमारा व्यक्ति महत्व बना है। तो हमारा व्यक्ति महत्व जब बनता है, एक पर्सनालिटी बनती है, तो एवरी पर्सनालिटी हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। ओके,
तो जब मेरे साथ और ऐसे लोग जुड़ते हैं तो देयर थिंकिंग, देयर साइकोलॉजी, देयर मॉडल, देयर थिंकिंग ऑफ वे विल गिव यू अ मोर कंसाइज और ऑप्टिमम वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। तो इसीलिए ये एक जरूरी है कि मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होना जरूरी है। यू कैन सी वेन एवर यू गो फॉर एनी स्टार्टअप, मिनिमम वन और टू, always one or two are there. When it is in seed process one रहता है, but when it is growing up, जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो वो दो तीन लोगों को क्लब अप करके चलता है। इसलिए ये जरूरी है कि जब स्टार्टअप्स होते हैं तो उनके साथ ज्यादा लोग हो। और ये जो स्टार्टअप्स होते हैं जनरली मीन्स ये एक जितने भी रिसर्चर है उन्होंने इसको कन्फाइंड कर दिया है कि उनकी जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होती है वो 500 बिलो ही रहती है, क्योंकि 500 एंड अबाव हो गया तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। करेक्ट, एक्चुअली 500 भी बहुत ज्यादा हो गया, एक्चुअली 100 लोगों से ही चलता है स्टार्टअप जो चलता है स्टार्टिंग में, देन यू कैन ग्रो। ओके, then this particular startups you can see as per the new pandas, whatever the technologies are coming, you can see more and more startups are moving around with the technology. As you can see, our mobile phone is continuously getting upgraded. You can see it was a simple Nokia mobile phone, and then the Samsung, now the Samsung again themselves they have upgraded to Android, correct? Now and Android, you can see the Google is having voice based technology to give the search, correct? So this is nothing but what a technology playing with that. It is also one of a character of a startup. When you are starting up, so you should always take care of a technology aspect, how you will get into the technology so the people will get in touch with you. Okay, and the very important part is innovations. Always innovations are required, because कोई भी कंपनी उसी स्टेट पे उसी प्रोडक्ट को सेल करते हुए नहीं बढ़ पाई है। इसीलिए स्टार्टअप में ये बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस इनोवेशंस होते रहे, क्योंकि क्या है ना, इनोवेशन जैसे मैंने बोला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से इनोवेशंस किए जाते हैं, करेक्ट? सो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड चेंज ऑलवेज। अगर आपका स्टार्टअप वो जो पर्टिकुलर चेंज को कंसिडर करते हुए इनोवेट करता नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी another person may find it is an innovative and he may start the business and your business may be get stuck up somewhere. ओके, तो ये एक जरूरी है कि आप जब इनोवेशन जो है करते हो तो ये सिर्फ एक बार नहीं होता है, एवरी टाइम यू हैव टू बी इनोवेटिव, then only people will start following you. Here not from the point of view of startup, but फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनोवेशन, इनोवेटिव एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 11 वर्जन डिक्लेयर किया, करेक्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट को एक्चुअली वेल स्टैब्लिश ब्रांड हो गया है, क्यों जरूरत है हर बार नया नया निकालने की? बिकॉज दे फाउंड मीन्स इट इज अ फंडामेंटल बेसिकली कि आप आपके ही लाइन को कंटिन्यूअस इनोवेट करते रहो, हर बार नया देते रहो, तो पीपल विल लाइक टू बी विथ यू। तो दिस इज नॉट, दैट्स व्हाई एक्चुअली ये जो रियल एग्जांपल मैं बता रही हूँ एमएनसी का, उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ है कि एज ए कैरेक्टर रखा गया है, एज ए इनोवेटिव यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव। आपका जो इनोवेशन का जो प्रोसेस है वो ऑन कंटिन्यूअस बेसिस वर्क ऑन होना चाहिए उस बिजनेस से रिलेटेड। ओके, अब स्टार्टअप्स का क्या करंट स्टेटस है इंडिया में? तो वर्ल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो सरप्राइजिंगली इंडिया इज सेकंड, वो आरडी एक्चुअली सॉरी एनडी चाहिए था, सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का। और इसका जो ग्रोथ देखा गया है वो है 10 to 12%। ओके, means it is year on year growth, it is from the last 5 years। okay, तो मीन्स यू कैन सी इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और कितना सारा उसका सक्सेस रेट है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 20,000 स्टार्टअप्स इंडिया में होते हैं। ओके, एंड अराउंड उसमें से जो है 4,750 जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं। मीन्स करीब करीब 4,500 से ऊपर के जो स्टार्टअप्स है वो टेक्नोलॉजी बेस है। ओके, फिर अदर देन दैट जो है वो अलग अलग है, लाइक ये मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस बेस है। ओके, देन
1,400 are the new tech setup were born in 2016 alone. Means 2016 अकेले में 1400 टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टार्टअप बॉर्न हुए. 2021 का डेटा मुझे मिला नहीं, बट वेन एवर आई विल गेट डेफिनेटली आई विल इंट्रोड्यूस इन माई क्लास. देन इम्प्लाइंग देयर मीन्स इसमें देखा गया है, अगर ये इम्प्लाई करते हो इसको इक्वेशन को, अगर हम देखते हैं 20,000 और ये 1400 और 4,750, तो उसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि 3 से 4 टेक स्टार्टअप्स एवरी डे में बॉर्न होते हैं. ओके, ये एक स्टार्टअप्स का हमारा इंडिया का सेटअप है. तो यू कैन सी 3 से 4 स्टार्टअप डेली ओपन करना, माने हमारे पास हाउ मेनी पीपल दे आर इनोवेटिव हियर. ये जो मैंने सर्कल दिखा ना, सॉरी सॉरी, ये जो मैंने सर्कल दिखाया ना, इनोवेशन, देयर आर द एंटरप्रेन्योर तो है ही, डेफिनेटली यू पीपल आर देयर हु आर थिंकिंग अबाउट इट. देयर आर द इनोवेटर्स बहुत सारे हैं. इस इनोवेटर्स को सिर्फ क्या चाहिए, इंक्यूबेशन चाहिए. इनको सिर्फ कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई हाथ धर के उनको चलाने वाला मिलना चाहिए, तब वो चल पाएंगे. करेक्ट. तो उसीलिए गवर्नमेंट ने आगे जाके स्कीम्स लाई है. अभी फैक्ट जो है इंडिया के वो ये है, as per the survey reported in इनोवेन कैपिटल, उन्होंने 114 सॉरी 140 फाउंडर्स को उन्होंने क्वेश्चनरी पूछ के ये डेटा कलेक्ट किया है. And leading factor make that means India as appealing is what, क्यों स्टार्टअप्स खोले जाते हैं हमारे इंडिया में. बेसिकली पहले तो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. ओके, यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मैटर करता है इंडिया में. प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर्स एंड द वेंडर, हमारी कस्टमर्स और वेंडर्स के साथ कनेक्टिविटी, ये भी एक है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बिजनेस हाउसेस ओपन हो रहे हैं. और दूसरा सबसे थर्ड पैरामीटर जो इन फाउंडर्स ने बताया वो है साइज ऑफ अ डोमेस्टिक मार्केट, कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, कस्टमर बहुत बड़े हैं. ओके, मीन्स इसकी वजह से ही एक है कि इंडिया में इतने सारे हमारे स्टार्टअप्स खुलते हैं. ओके, तो इसमें उन्होंने बोला है कि 7 बिलियन कॉलेज ग्रेजुएट पर ईयर, 55% ऑफ द यूथ प्रिफर वर्किंग इन अ स्टार्टअप ओवर द कारपोरेट. मीन्स ऐसा देखा गया है कि हमारे इंडिया में जो नए जो लोग हैं, नया जो खून है, वो जब ग्रेजुएट होता है, कुछ होता है, तो उसमें से 55 मीन्स हाफ ऑफ से ज़्यादा लोग स्टार्टअप या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पसंद करते हैं. और उनका जो एज है वो जो है फाउंडर्स का मीडियम में, जितने भी नए स्टार्टअप्स खुले उनका एज जो है वो मीडियम मीन्स जो मध्यांत आता है वो है साधारण 31 ईयर्स. मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम 22 टू द एज ऑफ 45 अराउंड, बट उसका जो मीडियन है वो ऑन एन एवरेज जो निकाला गया है वो 41 ईयर्स है. ओके, सॉरी 31 नॉट 41, 31 ईयर्स है. ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि नाउ द ग्रेजुएट पीपल हु ऑल आर कॉलेज गोइंग एंड यंग माइंड, दे डोंट वांटेड टू बी एम्प्लॉय ऑफ समवन, दे लाइक टू बिकम अ बॉस ऑफ समवन. ओके, तो ये भी एक रीजन है बेसिकली जिसकी वजह से स्टार्टअप खुल रहे हैं. ओके, दूसरा सबसे बड़ा बात, इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है और ये हमें बताती है कि हम सबसे बड़े हैं पूरे वर्ल्ड में. और उस ऑन टॉप ऑफ इट हमारे यहाँ पे कंज्यूमर इंटरनेट मार्केट बहुत बढ़ गया है. ओके, आई डोंट नो वेदर आई डिस्कस अ जियो केस इन योर क्लास और नॉट, बट मैंने आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट जियो का केस मैंने क्लास में डिस्कस किया था. आई थिंक आपके नहीं, मेरे क्लास में डिस्कस किया. जियो जब से आया है एक्चुअली तब से इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही इंटरनेट फ्रेंडली हो गया है. दे ऑल स्टार्टेड सफरिंग नाउ एंड वी आर पासिंग चाइना नाउ. चाइना में जितने लोग इंटरनेट नहीं यूज़ करते उतना इंडिया यूज़ करता है इंटरनेट. ये सबसे बड़ा फैक्ट है. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटरनेट इंडिया की पॉपुलेशन है. और इसमें अगर देखा गया कि कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, यू विल सरप्राइज. इसको यूज करने वाला एज ग्रुप जो है वो 10 to 25 ईयर्स एज ग्रुप में है.
एंड हियर यू विल सी कि 10 साल के बच्चे से लेकर 25 एज के लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट सफर करते हैं। एज कंपेयर टू दैट द अपर लिमिट में जो ऊपर वाले लोग हैं उससे वो सेकंड रेंज में आते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है अबाउ 45, उनका इंटरनेट का सर्फिंग जो रेट है मीन्स द यूज ऑफ पर डे वो उससे कम है, वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ अ फैक्ट अगेन कि यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो मैंने बोला ना, टेक business houses means technology based business houses started opening nowadays। Here just I like to give you one example, small एकदम छोटा सा एग्जाम्पल जो आप भी करते होगे। आज कहीं जाना नहीं है, पैंडेमिक भी है, बट घर में हमें पिज्जा खाना है, क्या करते हो? क्या करते हो? मोबाइल निकालते हो, मोबाइल पे कोई ना कोई ऐप होगा या फिर उसी वेंडर का होगा, उसी ऐप में से आप उसको बुक करते हो, वो होम डिलीवरी हो जाता है। इट इज़ नथिंग बट व्हाट वी ऑल आर यूजिंग वन टेक्नोलॉजी बेस्ड business house to get that pizza at your home. So this is nothing but what a biggest fact of our India that we all are changing. नाउ ये एक हमारा गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, statistics.com। वेन एवर यू विजिट यू कैन विजिट ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, यू कैन सी जो मुझे डेटा मिला वो मैंने अप्रैल 2021 तक जो मिला है वो मैंने यहाँ पे रखा है आप लोग के सामने कि जो ग्रो हो रहा है इंडिया में, उस टोटल यूनिकॉर्न्स इन इंडिया जो डेवलप हुए हैं, जो नए जो बिजनेस हाउसेस ओपन हुए, उसके बारे में उन्होंने बोला है। जैसे कि हम सभी छोटा सा ऐप देखते हैं जिसके ऊपर सभी वीडियोस देखते हैं, ये देखते हैं, वो है शेयर चैट। एक सिंपल सा ऐप है जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है, ये है, उसके अंदर शेयर भी हो सकता है। सी, they are standing third in our startup in India. Then if you talk about very simple that you if you see आपने ये नीचे वाली जो वेबसाइट है म्यूचुअल फंड वाली ग्रोवर, देन इंफ्रा मार्केट, गुपचुप, ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है बट दे ऑल आर winning a market, okay, they all are winning the market and you can see these all are fintech, you can see इसलिए इसके अंदर नीचे लिखा है, सबसे टॉप में भी देखोगे CRED जो है ये फिनटेक कंपनी है, सबसे लास्ट के भी देखोगे ग्रोवर, वो भी एक फिनटेक कंपनी है। फिर दोनों डिजिटल इंश्योरेंस जो है, देन 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, ये दोनों की दोनों क्या है, फाइनेंस कंपनीज है, एंड गुपचुप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। Okay, so you can see how this new startups came, okay, and how their particular business turnover got increased, okay, they are now in billions, correct। एंड अगर हम ऐसे स्टार्टअप्स को अगर देखें वैल्यूएशन के साथ जो 21 में देखा गया है, उसमें देखोगे तो सबसे टॉप में आता है 197 बाईजूस, जिसको बूस्ट मिला बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक बेसिकली। 20 तब तक का वो इतना नहीं था, बट यू कैन सी इन दिस पैंडेमिक पीरियड दे हैव स्प्रेड लाइक एनीथिंग। उसी के नीचे अभी थोड़ी दिनों में आप ओडा भी देखोगे। देन ये एक ओयो, जो ओयो भी है जो हमारे इंडिया में भी आया, करेक्ट, ओयो भी एक स्टार्टअप ही है। देन नेशनल सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका जो पेमेंट बैंक हमने देखा लास्ट रिटेल बैंकिंग में, वो भी कितना हाईएस्ट विद इन अ फ्यू years, you can see 6.5 बिलियंस का इनका बिजनेस हो चुका है आज की डेट में। Then Ola Cab, it is again growing because of this pandemic. Zomato same, Swiggy same. Dream 11, it is an one software company. They are building the softwares. Okay, so this is nothing but what this slide is giving you an idea. पहले जो business houses थे वो इस pandemic में boost हो गए। इस पैंडेमिक में कई नई बिजनेस आए बट वो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजन। ये जो फैक्ट मैंने अभी बताया है ये फैक्ट है बेसिकली कि जिसकी वजह से बिजनेस चलते हैं, क्योंकि बिजनेस का अगर कॉस्ट बढ़ गया तो पीपल विल नॉट लाइक टू कंटिन्यू यू। तो कॉस्ट इज वन ऑफ अ पैरामीटर। दूसरा एक है कि कस्टमर अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके पास वेंडर्स कितने अवेलेबल है,
वो एक है। और आपका डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, आपको डिसाइड करना है आप कौन से डोमेस्टिक मार्केट को पहले टारगेट करके चलते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने शेयर इट चार्ट के बारे में बात की थी, इनका टारगेट ग्रुप था वो टीनेजर था बेसिकली। इफ यू रीड द स्टोरी ऑफ अ शेयर चार्ट तो यू कैन सी उनका जो टारगेटेड कस्टमर था वो था टीनेजर एज ग्रुप। बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दे हैव नाउ टारगेटेड ऑल द पीपल हु आर actually fond of watching the videos and recording the many videos, okay, and getting the likes more. And this is again from the, actually this is from the WTO's website as well as our status website. State wise number of startups open up to the December of 18, WTO के जो पर्टिकुलर वेबसाइट उसी से मैंने डेटा उठाया है। तो आप सरप्राइजिंगली देखोगे सबसे हाईएस्ट स्टार्टअप जो दिसंबर में खोले गए थे वो महाराष्ट्र में, आज की डेट में भी वही डेटा सेम है। देन कर्नाटका, देन दिल्ली, देन उत्तर प्रदेश, देन तेलंगाना, देन गुजरात, देन हरियाणा, तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो यू कैन सी महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है ये वैसे भी दिल्ली की बात अगर कहीं से अगर फाइनेंस का सबसे बड़ा बूस्ट, सॉरी, दिल्ली इज जैसे कि नोन है फॉर पॉलिटिकल डिसीजंस, वैसे ही कारपोरेट डिसीजंस के लिए महाराष्ट्र नोन है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हेड ऑफिस मुंबई में है। वो भले कंपनी किसी भी इंडिया के कोने में होगी बट उसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र के मुंबई में है। एंड दैट इज द रीजन जो भी डिसीजन होगा महाराष्ट्र के अंदर रिलेटेड टू कारपोरेट, वो ऑटोमेटिकली पूरे इंडिया की इकोनॉमी को हिलाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि लाइक इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसके सबसे ज्यादा इनोवेटर जो है वो महाराष्ट्र से लीड करते हैं पहले। देन व्हाट इज स्टार्टअप, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर आप किसी को भी पूछोगे तो वो क्या कहते हैं कि मैनी पेपर डिफाइंस दैट स्टार्टअप्स इज नथिंग बट अ टेक बिजनेस, टेक्नोलॉजी बेस पे है जिसके अंदर 100 लोगों से भी कम लोग काम करते हैं। बट मैं ऐसा कहूँ तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, देन हमने जो भी इसके बारे में बात की थी रेड बस, इनको फिर मैं स्टार्टअप नहीं कर सकती, क्योंकि रेड बस जो है ये भी तो टेक्नोलॉजी बेस है बट उनका एम्प्लॉय स्टाफ 100 से ज्यादा है, करेक्ट। सो ये जो डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है। ओके, ये एक स्मॉल डेफिनेशन वन लाइन हो गया बट ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए आप एम्प्लॉय की बॉर्डर नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने वही बोला कि स्टार्टअप आप कौन से लाइन में डिसाइड कर रहे हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, तो अनदर फेमस डेफिनेशन जो है अभी स्टार्टअप्स के लिए वो है कि इट इज अ बिजनेस वेंचर दैट द फाउंडर हैव स्टार्टेड, ओके, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर सॉल्यूशन करने के लिए, एंड जो भी पोटेंशियल चैलेंजेस आएंगे उसके ओवरलुक करके उसमें अपॉर्चुनिटी निकाल के उसका बिजनेस मॉडल बनाना, ये एक स्टार्टअप का और एक डेफिनेशन धीरे धीरे चलन में आया कि स्टार्टअप क्या है। ओके, तो स्टार्टअप इन शॉर्ट, स्टार्टअप एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, ओके, एंड डिजाइन टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक स्टार्टअप इज सिंपल लैंग्वेज में कहूँ जो सारे शब्दों को जोड़ के लेके आता है वो है, जैसे मैंने वो तीन जो आपको सर्कल दिखा है वो इन सब तीनों को जोड़ देंगे। देखो, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सोचने वाला कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन बना, एक इंसान जिसने पहले सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं, इनोवेशन। सी द थर्ड, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द सेम डायग्राम विच आई हैव शोन यू। मैंने आप लोगों को जो पहला डायग्राम दिखा उसको आप देखो, उसके अंदर तीन सर्कल थे, करेक्ट, ऐसे ऐसे तीन सर्कल थे, करेक्ट। एक था यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, ये ह्यूमन बीइंग हुआ, यहाँ पे हुआ आपका इनोवेशन और यहाँ पे था आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, करेक्ट। ये तीन थे। तो आप देखोगे इस डिफिनेशन में तो तीनों आ जाता है ऑटोमेटिकली। ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, एक ह्यूमन ने स्टार्ट किया हुआ है जो कुछ नया बनाना चाहता है, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, और वो जो कंडीशंस होगी वो एक्सट्रीमली अनसर्टन, ये जो है ना डिजिटल, ये डिजिटल में यहाँ पे जो है ना कैप्चर वैल्यू, ये एक्सट्रीमली अनसर्टन बेसिस पे जो डिजाइन किया जाता है
उसको कहते हैं स्टार्टअप। ओके, स्टार्टअप जब स्टार्टअप होता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मुझे आगे क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम रेड बस का एग्जांपल, वेदर आई डिस्कस द रेड बस इन डिटेल विथ यू केस स्टडी, कैन एनीवन प्लीज टेल मी? हेलो, किसी को याद भी है? Prahlad and Nilima is there. I think Rajesh is not attending the classes. Nilima, you are very much in my class. Can you please tell me? हमने रेड बस के बारे में डिस्कस किया था कंप्लीट? हेलो प्रहलाद, I think they don't wanted to respond me. ओके फाइन, आई विल जस्ट टेल यू। जैसे कि रेड बस वालों ने, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था, रेड बस ने जो फाउंडर है उसको प्रॉब्लम हुआ था बस मिलने के लिए। उसने वो स्टार्ट करना भी चाहा, बट उसने वो एकदम इजी था कि लाइक यस मैं ऐसा करूँगा, बट अनसर्टन प्रॉब्लम उसने बहुत सारे फेस किए। जैसे कि स्पेसिफिकली जो लोग उसके ये थे, मीन्स जो बस वाले लोग हैं वही एक्चुअली बेसिकली तैयार नहीं हो रहे थे उनकी बस सर्विसेज टेक्नोलॉजी पे लाने के लिए, और वो तो एक बार कन्वेंस भी हो गए। बट जो मिडल ब्रोकर थे जिनको जैसे हम कहीं पे भी टिकट बुक करते हैं लग्जरी का तो मिडल मन के थ्रू करते, करेक्ट? पहले तो कोई डिजिटल फॉर्म नहीं था, आप जाके फिजिकली जाके या फिर बाय फोन टिकट बुक करवाओ, पैसे दे के आओ, ऐसे करेक्ट होता था। तो जो ब्रोकर लोग थे उनका बहुत बड़ा अनसर्टन प्रॉब्लम रेड बस ने फेस किया एंड ही ओवरकम दैट। तो इसीलिए ये जो लास्ट वर्ड है ना, एक्सट्रीम अनसर्टन कंडीशंस पे जाके ये स्टार्टअप चलाना एक स्किल है। ओके, एंड दैट्स व्हाई द स्टार्टअप, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग है जो नया क्रिएट करता है और उसके लिए जो काम करेगा वो अनसर्टन कंडीशंस पे होगी, जो कंडीशन उसने कभी देखी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी। ओके, then the next part of our startup is what are the different types of startups then, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप खुलते हैं, जैसे हमने अभी मैंने आप लोगों को फैक्ट्स में बताया कि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टार्टअप खुलते हैं, करेक्ट? तो टोटल अलग अलग 6 तरह के स्टार्टअप खुलते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आप जो स्टार्टअप खोल रहे हो वो कौन से टाइप में फॉल होगा। ओके, तो आई विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, जैसे कि स्मॉल स्टार्टअप जो स्टार्ट होते हैं टू अर्न द किचन मनी। किचन मनी क्या मीन्स आपकी रोजी रोटी कमानी है आपको। ओके, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा इनोवेटिव थॉट या फिर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको छोटा सा बिजनेस हाउस चालू करना है। ओके, छोटा सा खुद को एंटरप्रेन्योर बनाना है और उसके लिए कोई डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है, उसके बेसिस पे आप कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप बार्बर बन सकते हो, आप बेकर बन सकते हो, आप ग्रोसरी शॉप के ओनर हो सकते हो। तो ये सारे हाउसेस क्या है, ये भी स्टार्टअप ही है। ओके, ये भी स्टार्टअप ही है, बट उनका स्केल वो नहीं है, ये कंप्लीट इनोवेटिव नहीं है, बट ये स्टार्टअप है एज पर द डेफिनेशन जो है लॉ की, उसके हिसाब से ये स्टार्टअप है। जैसे कि टेक एग्जाम्पल, कल मैं जॉब छोड़ के मैं मेरी खुद की कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट करती हूँ, इट्स स्टार्टअप। ओके, तो ये एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ पे जो पैसा कमाते हो वो आपका एज अ अर्निंग मनी फॉर द गेटिंग ए ब्रेड एंड बटर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, तो दैट इज अ स्मॉल स्टार्टअप्स। ओके, देन लाइफस्टाइल स्टार्टअप एक अलग ही तरह के लोग होते हैं जो ऐसे खुद का दुकान लगा के नहीं चलते। ओके, बट दे वांटेड टू बी देयर ओन बॉस।
ओके, तो ऐसे जो लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स जो है उसके अंदर आते हैं आपके वेल एजुकेटेड लोग जो बॉस बनना चाहते हैं, लाइक आपके आगे जैसे भी जो प्रोग्रामर है, जो वेब डेवलपर, आजकल वेबसाइट डेवलपर, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की छोटी छोटी कंपनियां चल रही है, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं, तो वो हाउसेस आ गए। जो ग्राफिक्स डिजाइन करने वाले लोग हैं, देन जो कोडर है, ये सारे भी एंटरप्रेन्योर ही है। ओके, you will find many much enthusiastic entrepreneurs who have a passion to work there, and they all have work for themselves for becoming their own boss. ओके, उनका स्पेशल ऐसा कोई प्रॉब्लम को लीड करना या फिर नया कुछ लाना है ऐसा नहीं है। दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एज पर द नीड ऑफ अ कस्टमर। ओके, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज अगेन द सेम, सभी स्टार्टअप का जो है अर्निंग अ मनी। ओके, तो लाइफस्टाइल स्टार्टअप जो है वो थोड़े से अलग है, यहाँ पे एजुकेशन जरूरी है। पहले जो हमने किचन स्टार्टअप देखे वहां पे एजुकेशन वाज नॉट मैंडेटरी, बट हियर द एजुकेशन इज मैंडेटरी टू बिकम एन फ्रीलांसर। देन उससे थोड़ा बड़ा अगर कंसेप्ट आता है जिसमें आप अगर कुछ बिजनेस मॉडल को ग्रो कर रहे हो, आपकी सस्टेनेबिलिटी को स्टडी करके आप अगर डेवलप कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टार्टअप में सबसे पहला जो नाम आएगा वो है फेसबुक, गूगल, उबेर। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े, क्योंकि ये लोगों ने भी तो स्टार्टअप ही किया था। फेसबुक क्या था, एक सोशल पेज ओपन बाय द टू पीपल। एक उसको ऐसा लगा क्यों ना हम, एक फेसबुक से पहले ना एक ऑर्कुट करके चलता था, वो अभी भी है ऑर्कुट, यू कैन जस्ट गूगल इट। एक जमाने में मैंने खुद ऑर्कुट पे पेज बनाया था, बट ऑर्कुट इज समहाउ नॉट एबल टू कम्पीट विद द फेसबुक बेसिकली। आज भी ऑर्कुट है, बट वो उतना फेमस नहीं हो पाया जितना फेसबुक बन पाया, क्योंकि फेसबुक ने उसको स्केलेबल बनाया, उसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, धीरे धीरे उसको बहुत ग्रो किया। ओके, गूगल जो है, ये गूगल भी स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा था। इससे पहले जो था एमएस सर्च इंजन करके था माइक्रोसॉफ्ट का, उसी से सर्च करते थे। बट गूगल ने इतना बड़ा लैन वैन का इतना बड़ा कनेक्शन बनाया और इतने सारे सर्वर्स उनके बड़े हैं, उन्होंने इतना बड़ा क्लाउड स्पेस बना हुआ है कि ऑल द वेबसाइट मीन्स करीब करीब पूरे दुनिया की वेबसाइट जो है वो गूगल पे बेस है, गूगल के सर्वर पे होस्ट करके चल रही है। ओके, तो ऐसे कुछ स्टार्टअप्स है जो बहुत बड़े बन गए। जैसे उबेर हम बात करती है, उबेर नॉट ओनली इन इंडिया, दे ऑल आर इन दुबई ऑल्सो, दे आर वर्किंग इन मेनी कंट्रीज, करेक्ट। तो उबेर इज नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर वर्किंग इंटरनेशनली। सेम विथ फेसबुक एंड द गूगल। तो ये ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स होते हैं, हायर द बेस्ट ऑफ बेस्ट, ब्राइट अमंग्स द ब्राइटेस्ट। ओके, दे ऑलवेज हायर द पीपल। The entrepreneurs of such startups are on the journey to find the business model to scaled and are sustainable. Once they find the boom, they will bring a venture capital. ये बहुत बड़ा बात है। जैसे ही उनको कहीं बूम मिल जाता है, वो वेंचर कैपिटल को बूस्ट करते हैं और उनका जो बिजनेस है उसको बहुत बड़े स्केल पे खड़ा करते हैं। यही किया फेसबुक ने, गूगल, उबेर ने। इन्होंने छोटे से बिजनेस स्टार्ट किए थे, इनकी कभी केस स्टडीज पढ़ी है, देर आर द मिनी ईटी केस में भी मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे, इवन बिजनेस स्टैंडर्ड्स में भी मिल जाएगा आपको इनकी स्टोरीज, कि ये जब स्टार्ट हुए इनके पास इतना कैपिटल नहीं था, बट जैसे ही उनको बूम मिला, लोग स्टार्टेड ज्वाइनिंग ऑफ फेसबुक मोर, देन ही स्टार्टेड कि ओके, नाउ आई एम गेटिंग गुड रेवेन्यू, व्हाई नॉट टू हैव अ वेंचर कैपिटल। ओके, तो वो वेंचर कैपिटल जो आया, उसने उसने क्या किया, उसका खुद का बेस बढ़ाया, सर्वर बढ़ाए, नंबर ऑफ सर्वर बढ़ा के उसने उसकी कैपेसिटी बिल्टअप की, उस पेजेस को डायनेमिक बनाया। ओके, क्योंकि एक जमाने में फेसबुक का जो पेज था वो इतना डायनामिक नहीं था। नाउ यू कैन सी अ वेरी डायनामिक पेज ऑफ फेसबुक, करेक्ट। सेम इज विद गूगल एंड द उबेर आल्सो। ओके, सो ये एक स्केलेबल मॉडल है। देन कुछ लोग जो होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा होता है उनका, क्योंकि थिंकिंग ही ऐसा होता है, बनाओ या फिर मरो, दिस इज द व्यू। दीज आर द बिग कंपनी स्टार्टअप, वो बहुत बड़े बड़े कंपनी से स्टार्टअप आते हैं।
A large company can only survive if they continue to innovate. Okay, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया था रिसेंटली कि एम एस जो विंडोज है इन्होंने अभी नया सेटअप लेके आए हैं, करेक्ट। इवन एप्पल फोन, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल। जैसे ही they found that people started shifting on Android. All the mobile companies started on shifting on the Android. फिर Apple company got threatened कि like oh it will be a difficult then, correct। सभी अगर Android बेस निकाल रहे, सिर्फ फर्क क्या हो गया, मेरा Apple सेटअप हो गया, उनका Android हो गया, बट फीचर तो सेम ही है ना, सभी कुछ सेम है। फिर मेरे कंपनी में, मेरे एप्पल फोन में क्या नया है, करेक्ट। तो ऐसी लार्ज कंपनी जो है वो सोचती है, जैसे एप्पल ने सोचा कि सभी में एंड्रॉयड है, सभी में सारे फीचर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, पीपल लाइक कलर्स, कैमराज अच्छे हैं, बॉडी हैवी ड्यूटी मिलने लग गया है, इवन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी अच्छा मिलने लग गया है। ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी एप्पल ने लैकुना फाइंड किया कि सिक्योरिटी, आप आपके मोबाइल से ट्रांजिट करते हो, आप आपके मोबाइल में डेटा रखते हो, कि चोरी ना हो, इसके लिए एप्पल हैव अ सेपरेट अल्गोरिदम विच इज रनिंग टू सेफगार्ड योर मोबाइल फोन डेटा। वो हमारे सबके नॉर्मल एंड्रॉयड में हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये इंस्टॉल करने के लिए सभी को इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एप्पल में वो इंस्टॉल करके आता है कंपनी से। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इनोवेट और डाई, क्योंकि एप्पल ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ कंपिटिटर्स, threatened by the competitors, and they come up with this कि like why not to have this, okay। तो क्योंकि एप्पल पहले जो था, दे आर टारगेटिंग ओनली द रिच पीपल हु कैन अफोर्ड, बट नाउ दे wanted to have a some middle class family or middle class people who can afford the Apple, and you can see the Apple is coming around now 40-30 plus, correct। तो ये एक जो रेंज उन्होंने जो लाया है, ये जो रेंज है, ये मिडिल फैमिलीज, मिडिल क्लास लोगों के लिए अट्रैक्टिव है विद ऑल द फीचर ऑफ एप्पल। एंड एज यू नो द नेम बिग कंपनीज, एप्पल नाम ही काफी है, लोग कंसिडर इट एज अ स्टेटस सिंबल, करेक्ट। तो ये एक है कि यहाँ पे ऐसे एक आते हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इनोवेट और डाई में, और एक कंसेप्ट है, वो है कि इनको डिमांड शिफ्ट देखना होता है, कस्टमर प्रेफरेंसेस देखने हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखना है, ये सब करते हुए उन्होंने ये सब कुछ करना जरूरी है। ओके, देन मेड टू बॉट, okay, made to bot, there is an another kind of a setup actually. They are no intention to grow, okay, scalable, grow into the scalable, एक्चुअली दे वांटेड टू सेल वंस कंसेप्ट द सक्सीड, ओके। ऐसे कुछ होते हैं कि जो बनाते हैं, उसको चालू करते हैं और उसको किसी और को टेक ओवर कर देते हैं। ऐसे बिजनेस हाउसेस मीन्स मैं खुद नहीं चलाना चाहती हूँ, मैंने चालू तो कर दिया, मैंने उसको रनिंग में भी ला दिया, बट नाउ अगर मुझे कोई अच्छा बायर मिलता है जो मेरे स्टार्टअप को खरीद के उसके उसके ब्रांड के साथ चलाना चाहता है, तो आई लाइक टू गिव टेक ओवर, ओके। दैट काइंड ऑफ इज नथिंग बट मेड टू बॉट, कि मीन्स मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस मैं खुद ना रन करते हुए दूसरे को दे दूँ, उसकी मुझे क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी, ओके। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट मेड टू बी बॉट, ओके। तो नाउ I think इसके बाद yeah, I will just take this one and then we'll stop। देन सोशल स्टार्टअप जो है, ये भी एक बहुत बड़ा टाइप का बिजनेस है बेसिकली। इसके अंदर वी आर थिंकिंग ब्रॉड, ओके, मीन्स वी आर थिंकिंग टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग टू वर्ल्ड, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग अप दिस social startup, okay। And here are the many startups who are grooming in a society base, okay। ऑब्वियसली सबका मेन गोल तो एक ही है कि रेवेन्यू बनाना। यहाँ पे मैं फेसबुक के अलावा और एक आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, वो ट्विटर का है, लिंक्डइन का है, नाउअडेज एकेडमिया करके एक एकेडमिशियन के लिए आया हुआ है वेबसाइट है, वो भी एक सोशल स्टार्टअप ही है। देन उसके अलावा रिसर्च गेट, इट इज वेरी ओल्ड एक्चुअली, जब आया था तब से मैं उसको यूज कर रही हूँ,
बट दैट इज अगेन एकेडमिशियन बेस्ड पर्टिकुलर स्टार्टअप. वहाँ पे सभी दुनिया भर के national as well as the international people who are from academics, they can connect. LinkedIn क्या है? LinkedIn में तो everybody can come who is a professional, who is working, even the freelancer, even the business owner, they all can come and they can connect with the professional people, correct? LinkedIn is also one of a social startup where they wanted to make a society of a professionals who believe in making a relations in this particular world of a profession. ओके, तो ऐसे भी स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ पे दे आर थिंकिंग intention to improve the world and not just have a scalable business but it is obvious revenue. ओके, सिर्फ उसको स्केलेबल मीन्स बहुत बड़ा बनाना ये नहीं है, बट उसके साथ उसका रेवेन्यू भी बढ़ाना है. इसलिए आप देखोगे लिंक्डइन में प्राइम लिंक्डइन भी अकाउंट है. ओके, जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो, हमारा पर्टिकुलर प्रोफाइल लॉक कर सकते हो. देयर आर मेनी फीचर्स आर कमिंग नाउ. एक दिन ऐसा ही हमारा गूगल भी हो जाएगा और ऐसा हमारा फेसबुक भी हो जाएगा. धीरे धीरे इट इज गोइंग टू हैपन. ओके, तो सोशल स्टार्टअप जो है वो इस तरह के होते हैं जो सोसाइटी बेस्ड चलते हैं. Okay, so today we'll stop here. Thank you all of you. In next class we'll talk about the funding. Okay, thank you. रुकना था